آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ ہیلتھ کے شعبے میں پورے فیصل آباد ریجن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں, میڈم ڈاکٹر نگینہ شہزادی ہمارے ساتھ ہیں. بتائیں کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے؟ آئی ایم گولڈ میڈلسٹ. میری FCPS ہے پیڈیاٹرک میڈیسن میں. اس میں ہم برتھ سے لے کے 14 ایئرز آف ایج تک جتنے بچوں میں ڈیزیزز دیکھتے ہیں. تعلیم کہاں سے حاصل کی, شروع کہاں سے کیا؟ پرائمری ایجوکیشن تو میری فیصل آباد سے ہی ہے. اس کے بعد میں نے قرآن پاک حفظ کیا. وہ الحمدللہ میں نے 6 منتھس میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. اور لمبی اچیومنٹ, اور سب اتنا بڑا نام, آپ 1-2 مہینے کے اندر ایسے ایسے واقعات ہوئے. جیسے یہ آپ کا ایک بڑا ایک شورا افاق, بچے نے ایک جھمکا نگل لیا. ہم نے کیونکہ فریکوینٹلی دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو کہ مسلسل ایسے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور مسلسل آپ ہی ان کیسز کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور ایک قسم کا وہ جسے کہتے ہیں اصل جو مسیحا کی شکل ہے وہ آپ نے اس شہر میں روشناس کروائی ہے. جب یہ فورن باڈیز والے بچے آتے ہیں نا جو کچھ نکال لیتے ہیں, اس میں پیرنٹس بہت زیادہ ورڈ ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ جب آپ نکال لیتے ہیں نا, اس کے بعد جو پیرنٹس کے فیسز پہ سیٹسفیکشن اور جو دعائیں ہوتی ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے میوزک وغیرہ بھی سنتی ہیں یا ویسے ایک بالکل خشک لائف گزار رہی ہیں؟ ابرار الحق مجھے بہت پسند ہے, اور گھر میں بچے بھی جو مذاق اڑاتے ہیں کہ ماما کو جو ہے نا ابرار الحق بہت پسند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوڈ کاسٹ وذ سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ ہیلتھ کے شعبے میں پورے فیصل آباد ریجن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں, میڈم ڈاکٹر نگینہ شہزادی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک تو میں آپ کا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بریفلی خود تعارف کروائیں, بتائیں کہ آپ نے کیا 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 ہوا ہے. تھینک یو سب سے پہلے کہ آپ نے انوائٹ کیا, اور السلام علیکم ٹو آل دا ویئرز اینڈ لسنرز جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. تعارف تو آپ نے میرا کروا دیا ہے. آئی ایم گولڈ میڈلسٹ, اور میری FCPS ہے پیڈیاٹرک میڈیسن میں, یعنی بچوں کی جو بیماریاں ہیں اوور آل جتنی بھی ڈیزیزز ہیں اس میں ہم برتھ سے لے کے 14 ایئرز آف ایج تک جتنے بچوں میں ڈیزیزز دیکھتے ہیں. ایک تو اس میں میری اسپیشلائزیشن ہے الحمدللہ, اور سیکنڈ میری FCPS ہے فرام کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان, جو کہ پاکستان کی سب سے پریسٹیجیس ڈگری ہے. اور اس میں میرا پیڈیاٹرک گیسٹرونٹرولوجی, ہیپاٹولوجی اینڈ نیوٹریشن, یعنی عام زبان میں آپ کہیں تو بچوں کے جو معدے جگر آنت کے مسائل ہیں اس میں میری اسپیشلائزیشن ہے سیکنڈ. اینڈ الحمدللہ آئی ایم دا پائنیئر اینڈ دا فرسٹ پیڈیاٹرک گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیپاٹولوجسٹ ان دس ریجن. تعلیم کہاں سے حاصل کی, شروع کہاں سے کیا, کیریئر کیسے سٹارٹ کیا؟ پرائمری ایجوکیشن تو میری فیصل آباد سے ہی ہے. آئی بلونگ ٹو فیصل آباد. اور اس کے بعد میں نے قرآن پاک حفظ کیا 5th کے بعد, اور وہ الحمدللہ میں نے 6 منتھس میں قرآن پاک حفظ کیا تھا. اور جس انسٹیٹیوشن سے کیا انہوں نے بھی کافی اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا, اور الحمدللہ اس سے ایک اچھی نسبت بھی ہے. اور آئی بلیو, اور میری مدر بھی آج بھی یہی کہتی ہیں کہ تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا, یہ سب کچھ جو تمہارے دل میں ہے نا قرآن پاک ہے, اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے. تو میری مدر جب بھی یہ بات کرتی ہیں نا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ خوشی کے ہی آنسو ہوتے ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ میرا سب سے بہترین یہ ڈیسیژن تھا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو قرآن پاک حفظ کرواؤں گی. اور میں فیملی میں پہلی کہہ لیں کہ بیٹی تھی کہ جس نے قرآن پاک حفظ کیا. اس کے بعد میں نے 6th-7th کلاس نہیں پڑھی, پھر ڈائریکٹ میں نے 8th کلاس جو ہے وہ بھی میں مدرسے میں ہی پڑھ رہی تھی, اور 3 منتھس میں نے اس کی تیاری کی, اور کوئی اسکول جوائن نہیں کیا. اور 3 منتھس میری جو سسٹر ہیں بڑی, انہوں نے مجھے صرف گھر میں بیٹھ کے تیاری کروائی ہے. ساتھ میں مدرسے میں بھی جاتی تھی, اور پھر میں نے 8th کلاس میں ٹاپ کیا اپنی کلاس میں, فرسٹ پوزیشن تھی میری. اور الحمدللہ اس دوران کافی تکلیفیں یا ایسی کوئی صورتحال تو ہوئی ہوگی جو آپ نے قسم کا ویسا واقعہ جو آپ بتانا چاہیں؟ اس ٹائم تو چھوٹی تھی, اتنا نہیں. پھر میٹرک میں سائنس رکھی, پھر اس میں بھی الحمدللہ فرسٹ پوزیشن تھی میری. پھر میرا اسکالرشپ پہ ایڈمیشن ہوا پنجاب کالج میں. ہمارا پہلا بیچ تھا پنجاب کالج فار وومن, یعنی میرا اس پہ سنگل پینی بھی نہیں لگا, بالکل فری آف کاسٹ اسکالرشپ کی بیس پہ. میرا اتنے اچھے مارکس تھے الحمدللہ کہ میری ساری کوالیفیکیشن جو تھی وہ FSC وہ میری
स्कॉलरशिप पे थी और उसमें भी मेरी दोनों ईयर्स में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर्स में टॉप 3 पोजीशंस में मैं थी। और वो पहला बैच था कि जिसमें से उनका कोई स्टूडेंट जिसका MBBS में एडमिशन हुआ हो, और वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। तो मेरा पंजाब मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, उसमें मेरा मेरिट बेस्ड पे अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हुआ। तो मुश्किलें तो बहुत सी आई, और लेकिन ये कि लगे रहे, अल्लाह ताला ने भी साथ दिया, पेरेंट्स की भी दुआएं थी। जब आपकी अपनी डिटर्मिनेशन होती है तो अल्लाह ताला भी उसमें ज़रूर आपका साथ देते हैं। और इतनी लंबी अचीवमेंट और सब इतना बड़ा नाम आपके करियर पे इस वक्त पूरे फैसलाबाद में एक किस्म का, जहाँ पर भी कोई इशू ले लें आप, इवन देन पिछले दिनों में भी एक 2 महीने के अंदर अंदर ऐसे ऐसे वाक़यात हुए, जैसे ये आपका एक बड़ा एक शोरा आफाक, बच्चे ने एक झुमका निगल लिया, उसके बाद फिर कुछ कॉमन पेन्स और इस तरह के। अच्छा, ऐसे केसेस इतनी महारत से कैसे डील कर लेती हैं आप? बस इसमें एक तो मेरी स्पेशलाइजेशन है और मेरा एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ही है। और मैं पिछले 7 to 8 ईयर्स से गैस्ट्रो का जो डिपार्टमेंट है बच्चों का, मेदे जिगर आंत का, मैं सोली खुद हेड कर रही हूँ। मतलब मेरी सुपरविजन में सारा डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अब केसेस कर चुके हैं कि उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है। बाकी जब आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला भी आपका साथ देते हैं। बहुत बहुत मुश्किल केसेस भी आए हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते थे। जैसे एक दफ़ा ब्लेड खा लिया था बच्चे ने, 4 मंथ्स का बेबी था, उसमें भी हमें मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डॉक्टर्स भी वरीड हो जाते हैं कि मतलब एक तो इसने लिया कैसे, अब निकालना भी हमारे लिए एक चैलेंज था कि उसको निकालेंगे तो उसके शार्प एजेस हैं तो वो खुराक की नाली को भी डैमेज करेंगे। फिर हमारी सर्जन की जो टीम है, पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, उनको मैंने लूप में लिया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई मसला हुआ तो हम आपसे भी हेल्प लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर ने कि ना, हमें आप पे ट्रस्ट है तो आप इसको एंडोस्कोपी से करें, बच्चे को सर्जरी से हम बचाएंगे, बच्चे को कोई ऑपरेशन, कोई टांके वगैरह ना लगे, इसके बगैर इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे, मुझे आप पे बिलीव है। तो खैर वो मैंने ट्राई की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बगैर किसी कॉम्प्लिकेशंस के अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो ब्लेड हमने निकाल लिया। इसी तरह ये बड़े कॉमन इश्यूज़ हैं। और जब मैंने ये ज्वाइन करना था गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, क्योंकि आपको पता है पीड्स में बहुत सी स्पेशलिटीज़ हैं, और मुझे काफ़ी सीनियर्स ने गाइड भी किया कि आप कोई और फील्ड चूज़ कर लें। जैसे कार्डियोलॉजी का मुझे कहा गया कि आप दिल के अमराज हैं उसमें चली जाएं, या बच्चों में जो बच्चे बैठते नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, दिमाग के मसाइल हैं, मुझे उसमें भी काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ये ज्वाइन कर लें। उसका फैसलाबाद में कोई नहीं है ना डॉक्टर स्पेशलिस्ट, बाकी एरियाज़ में लाहौर वगैरह में तो लेकिन है। जो आपके पास अब स्पेशलाइजेशन है इसमें भी तो कोई भी नहीं है। इसमें भी कोई नहीं था, लेकिन बस मेरा अपना इंटरेस्ट था इसमें। उसकी भी कुछ रीजंस थी कि मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ही चूज़ की। और मेरे भाई को इशू था, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम था, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो उनको मैं जब देखती थी ना, मैं 2nd ईयर क्लास में थी तब, तो उनकी मतलब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, एग्ज़ाम से 2 महीने पहले उनकी डेथ हो गई। मेरे सामने मैंने उनको सारा देखा हुआ था। तो उनका कोई हल नहीं निकल सका ना, उनकी बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सका। तो जैसे आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाती है कि अगर इस तरह का मसला किसी और को होता है तो मतलब वी आर सो हेल्पलेस कि हम इसका इलाज नहीं करा सकते। तो बस उसी वक्त से मेरे जहन में था कि मैं जब भी किया तो मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ही चूज़ करूँगी। तो बस अल्लाह ने लेके जाना था इस तरफ। अब बहुत से बच्चे आते हैं ऐसी बीमारियों के साथ जो मेरे भाई को थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो रहे हैं। तो मुझे खुशी फील होती है कि मतलब मेरा अच्छा डिसीजन था। और यहाँ पे इस इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 80% जो बीमारियाँ हैं बच्चों की, वो आपके मैदे से, जिगर से रिलेटेड हैं, आपकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं। बच्चा खाता नहीं है, या बच्चे की वज़न कम है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, या बच्चों को डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज़ हैं, मिल्क एलर्जीज़ हैं, कोई गंदम से एलर्जीज़ हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज़ भी वो भी हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में ही देखते हैं। तो उसका भी कोई फैसलाबाद में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं था जो कि टोटली डेडिकेटेड हो टूवर्ड्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है और कि मैंने ये फील्ड चूज़ किया। और आई एम थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी एंड माय पेरेंट्स और माय फैमिली और सब मेरे फ्रेंड्स और कोलीग्स जिन्होंने मुझे इस जर्नी में सपोर्ट किया।
आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम। बड़ा लॉन्ग जर्नी है, बड़ी लॉन्ग सक्सेस स्टोरी है आपकी। इस सफ़र में ज़ाहिर बात है आप कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा एक किस्म का आपकी हेल्प की, आपको एक किस्म का मोटिवेट किया, या आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया? देखें, हर फेज़ पे ना आपको कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिल जाती है जो आपको इंस्पायर करती है। जब मैं 8th में थी ना, तो मेरी टीचर थी, स्कूल टीचर जो मिस आरफा, वो अब चली गई हैं यूके, शिफ्ट हो गई हैं। तो वो मुझे इतना एडमायर करती थी, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने देखिए 8th क्लास पढ़ ली थी उनकी सुपरविजन में। तो उन्होंने, जब मैंने मैट्रिक किया ना, उसके बाद ना मैं घर बैठ गई। तो मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मुझे उन पे फ़ख्र है कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, और मैं अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट जो हमारे हाथ से ठीक होते हैं अल्लाह की रज़ा से, तो ये भी उनके लिए सदका जारिया। तो 10th के बाद जो ना, मैं कोई प्लान नहीं था मेरा एडमिशन लेने का, तो ज़ाहिर है फैमिली में इतना ट्रेंड भी नहीं था उस दौर में। तो इन्होंने ना PTCL फ़ोन्स लगे होते थे घर में, इन्होंने हमारे घर कॉल की, मेरी सिस्टर ने रिसीव की, तो इन्होंने कहा अपनी मदर से मेरी बात करवाएं। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बेटी के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मैट्रिक में, तो आपने इसको घर क्यों बिठाया हुआ है, इसका आप एडमिशन करवाएं। उन्होंने फिर गाइड किया, जी पंजाब कॉलेज में जाएं, स्कॉलरशिप पे वहाँ पे एडमिशन्स हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती कि जितनी देखने वाले को लग रही होती है कि ये डॉक्टर जो है ना आराम से आके सीट पे बैठ गए। पीछे उसकी एक लॉन्ग जर्नी है, एक लॉन्ग एफर्ट है, आपकी स्ट्रगल है, और ये कंटिन्यूस स्ट्रगल है। मतलब आप कहीं भी ब्रेक नहीं है। मतलब जब से हम लगे हुए हैं मैट्रिक से लेके FSC, फिर आपका MBBS आ जाता है 5 साल, उसमें भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7 मेडल्स हैं। और उसमें पूरे पंजाब में यूनिवर्सिटी में मेरी पोजीशन थी, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मेरी डिस्टिंक्शंस थी अल्हम्दुलिल्लाह। गायनी में मेरी डिस्टिंक्शन थी, पीडियाट्रिक मेडिसिन में थी, कम्युनिटी मेडिसिन में थी, और मतलब ये ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको लोग ड्राई सब्जेक्ट समझते थे, और पूरी क्लास में से मेरी ही डिस्टिंक्शन थी। मतलब हमारी जो 300+ की क्लास होती थी, और कम्युनिटी मेडिसिन में तो पूरे पंजाब में सिर्फ मेरी ही डिस्टिंक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारे टीचर थे गायनी के, जो उनकी डेथ हो गई है, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, डॉक्टर महमूद अलीम। तो उन्होंने मुझे, मतलब उस टाइम मैं 4th ईयर में थी, गायनी में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिए। उन्होंने आखिरी क्वेश्चन पूछा, तो कहते बताओ SLE में बच्चे को क्या होता है। तो मतलब मुझे आज भी वो याद है। तो कहते हैं ये क्वेश्चन बता दोगी ना तो तुम्हें मैं डिस्टिंक्शन दे दूँगी। तो उसमें हार्ट ब्लॉक्स होते हैं बच्चे में, मतलब इस लेवल पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि आंसर करेगा स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले। तो खैर उसमें मेरी डिस्टिंक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो ओनली जो गायनी की डिस्टिंक्शन थी वो मेरी थी। फिर इसके अलावा जो है प्रॉफ में, हर प्रॉफ में कोई ना कोई पोजीशन होती थी। लेकिन फिर मेरी एक टीचर थी कम्युनिटी मेडिसिन की, डॉक्टर फरीदा, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक मोरल सपोर्ट भी आपको चाहिए होती है, हर चीज़ आपको फाइनेंशियल या बाकी चीज़ें नहीं होती, मोरल सपोर्ट भी काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी आपका मोरल अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी आप कहते हैं मैं गिव अप कर दूँ। आपके बारे में एक और भी बड़ा मशहूर है कि आपने तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना कि ग्रास रूट लेवल पे वो एक जिसे कहते हैं कि दिए की रोशनी में अपनी तालीम मुकम्मल की। ये क्या सीन था? बस वो कभी लाइट नहीं होती थी पाकिस्तान में, आपको पता है शुरू से हालात कैसे हैं। तो कई दफ़ा ऐसे होना कि रात को लाइट चली जानी, UPS क्या हालात की वजह से ऐसा था या कि वैसे ही जस्ट? नहीं, हालात भी इस तरह के आए दरमियान में कि मतलब मुश्किल हुई, परेशानी हुई कि लाइट चली गई है और आपके पास कोई सेकंड सोर्स नहीं है, UPS नहीं है कि आप लाइट जला के पढ़ सकें। फिर मैंने चिराग जलाना, उसमें बैठ के पढ़ना। और मदर मेरी जो है ना, मेरी वजह से अक्सर जागती होती थी। उनकी जब आँख खुलनी ना, उन्होंने कहना मैं जब उठती हूँ तुम बैठी पढ़ ही रही होती हो। और कभी बारिश होनी तो मैंने कहना, अम्मी ने कहना नहीं तुम आज छुट्टी कर लो ना, मौसम अच्छा नहीं है। उस टाइम हमारी जो कॉलेज की बस है ना, वो काफ़ी डिस्टेंस था मेरे घर से। मतलब अब तो उन्होंने काफ़ी एक्सटेंड कर दिए ना रास्ते, तो मुझे काफ़ी 15-20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था जो मुझे चल के आना पड़ता था। तो मेरी मदर ने मुझे वहाँ तक छोड़ने आना,
और कई दफ़ा कहना है कि चलो बारिश है तो आज तो तुम ना ही जाओ ना, कहते ये इधर की इधर हो जाए, इस बच्ची ने छुट्टी नहीं करनी कॉलेज से, स्कूल से। यही डेडिकेशन था जो आपको इस मुकाम तक डॉक्टर साहब लेकर आया। अच्छा, एक चीज़ और, वैसे लाइटली क्या अपनी क्या कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक वगैरह भी सुनती हैं या वैसे एक बिल्कुल खुश्क लाइफ गुजार रही है? नहीं, म्यूज़िक सुन लेती हूँ, गाड़ी में टाइम मिलता है हमें। क्या कौन सा म्यूज़िक पसंद करती हैं? म्यूज़िक स्लो म्यूज़िक, स्लो भी सुन लेती हूँ। अब्रारुल हक मुझे बहुत पसंद है, और घर में बच्चे भी जो मजाक उड़ाते हैं कि मामा को जो है ना अब्रारुल हक बहुत पसंद है। और इसके अलावा आतिफ असलम हैं, कुछ पुराने सॉन्ग जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं वो भी पसंद है, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कि आप कहें कि बड़ा टाइम स्पेयर है तो आपने सुनना कभी कभार। लेते हैं या नहीं? नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हैं, जो आप क्या कहते हैं कि बच्चों का आपने जिक्र किया, सारी बात है ये एक हर एक प्रोफेशनल्स के साथ ही होता है, आपका इतना ज़्यादा टाइम बाहर, आपको इतनी लंबी आपकी किस्म की वो जिसे कहते हैं कि जॉब्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं, तो क्या फैमिली के लिए टाइम फिर निकल आता है? मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है बच्चे भी आदी हो गए हैं कि अपने आप कितना बिजी कर लिया है, और हमें भी शायद इतनी आदत हो गई है कि अब वो हम उस तरह से ना फारिग रह भी नहीं सकते कि सुबह की आपकी जॉब है, फिर कोई एमरजेंसी आ जाती है, आपको भागना पड़ता है। तो बच्चों को पता है कि अभी मामा गई है ना, तो किसी ना किसी बच्चे ने कुछ खा लिया है तो मामा बस निकालने गई है। तो घर में भी बच्चा कभी कोई चीज़ मुंह में उठा के डालने लगे तो मैं मना करूँ, कोई बात नहीं मामा आप हैं ना, तो आप निकाल ही लेंगे इसको। तो अब ये वैसे डॉक्टर साहब बड़ी पूरे फैसलाबाद रीजन में जिसे कहते हैं आपका कोई सानी नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमने क्योंकि फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं हम आपको कि मुसलसल ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और मुसलसल आप ही उन केसेस के ऊपर काम कर रही हैं, और उन फैमिलीज़ को एक किस्म के उनके बच्चे एक किस्म का वो जिसे कहते हैं असल जो मसीहा की शक्ल है वो आपने इस शहर में रोशनास करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अब देखिए जब ये फॉरेन बॉडीज़ वाले बच्चे आते हैं ना जो कुछ निकल लेते हैं, उसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें होता है कि बस 1 मिनट ना लगे और बच्चे का फ़ौरन से पहले जो है वो निकाल दिया जाए। तो उसमें मैंने इतनी एमरजेंसी जिसमें डील कर चुकी हैं कि रात के 2-2 बजे भी मुझे जाना पड़ा है, कई दफ़ा सुबह अर्ली मॉर्निंग भी उठ के जाती हूँ। भी परसों मैंने एक 7 बजे फॉरेन बॉडी निकाली है, फिर इसी तरह लेट नाइट भी, मतलब कोई टाइम नहीं है फॉरेन बॉडीज़ का कि किसी भी टाइम आपको जाना पड़ सकता है। तो बीइंग अ सिंगल पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मुझे प्रॉब्लम भी होती है, जाहिर है कि हर पेशेंट आपको खुद ही मैनेज करना होता है, आप ही ओनली अवेलेबल हैं, फिर हर हॉस्पिटल से रेफरल है। तो उसमें ये कि जब आप निकाल लेते हैं ना, उसके बाद जो पेरेंट्स के फेसेस पे सेटिस्फेक्शन और जो दुआएं होती हैं वो आपको जितनी सेटिस्फेक्शन देती है ना, तो आप सब कुछ कमा लेते हैं उसमें। उसमें आपको मतलब कोई पैसे की हवस या कोई और चीज़ नहीं होती, वो जो आपको दुआएं मिल रही होती हैं, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स का ये बहुत उनकी दुआएं हैं कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नवाजा है। और कई पेशेंट आप यकीन करें कि आके बताते हैं कि मैं तहज्जुद की जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना डॉक्टर साहबा, तो मैं आपको ज़रूर याद रखती हूँ। मतलब मुझे, हम डेली बेसिस पे इतने ज़्यादा पेशेंट्स देख रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि फेसेस कुछ के याद रह जाते हैं, लेकिन जिनका ट्रीटमेंट किया होता है, बच्चे जिनके माशाल्लाह ठीक हुए होते हैं, वो लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं। और ये दुआएं ही हैं जो हमारा एक कह लें असासा है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। और डॉक्टर साहब, हज़ारों ख़वातीन के लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हैं, हज़ारों ऐसी ख़वातीन जो आपकी फील्ड में आना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपने देखा तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा एक किस्म का जो है वो बड़ी मेहनत कर रही हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि ख़वातीन किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में मर्दों से बिल्कुल कम नहीं है, और आप चाहें तो हर वो चीज़ हासिल कर सकती हैं जो आपके दिल में है। बस मकसद ये है कि आपके पास मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन लगे रहें। बस आपको बहुत से नज़र आएंगी चीज़ें, बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको लेग पुलिंग भी होगी, डी ट्रैक भी करेंगे, और मतलब ज़्यादा आपको खींचने वाले होंगे, आपको बूस्ट अप करने वाले लोग कम मिलेंगे। लेकिन आपने बस उनसे डरना नहीं है और घबराना भी नहीं है, और अपने रास्ते पे रहें। तो इंशाल्लाह अगर आपकी नीयत अच्छी है तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ।
यू कैन अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये बहुत बड़ी डॉक्टर नगीना शहजादी यकीनी तौर पर हमारे फैसलाबाद के लिए रोल मॉडल भी हैं और एक ऐसी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हैं जिनको देखकर हज़ारों नहीं लाखों ख़वातीन जो हैं वो सीख सकती हैं कि ज़िंदगी को किस तरह कामयाबी के साथ गुजारा जा सकता है और किस तरह से अपने गोल्स जो हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट जो है वो आपको पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी तमाम तर आरा के लिए हमें ज़रूर लिखिएगा। आपकी तमाम तर मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।